Okay. Hi. Today I came here for the new options or the new era of YouTube or the information technology. So I have created my own channel called Guaranteed Success. So in real life, nothing is guaranteed. If you are thinking about why I have taken this name Guaranteed Success, so you haven't get these things, because the thing is that nothing is guaranteed in your life, but the success is guaranteed. Why? Here you need three things. First one is your dedications, your disciplines, and hard working. These are the three elements that will make you guaranteed success in your life. Okay, so here in this channel, I would like to go and I will teach you. हम लोग जो पोर्शन को टच करेंगे इसमें हम लोग यहाँ पर जो आपके लिए उपयोगी होगा वो है GRF नेट के लिए. Those who are going to appear for the GRF net, they will get some study material from here. Okay, those who would like to go for the IBPS SOHR, these people also will get help from these types of classes. And next one is we get some PhD entrance exam, PhD entrance test from the different universities like CU, CET, Central University. Entrance test for the PhD will get help from these particular topics, IBPS, GRF net, and these are the main areas we are going to cover. So here I will go through the different perspectives of the HR. बेसिकली हम लोग इस चैनल के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचआर के टॉपिक्स को रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एचआर के टॉपिक हम लोग ज्यादातर यहाँ पर देखेंगे. एचआर से टॉपिक सिर्फ एचआर से ही नहीं, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड पेपर 1 के तरफ से भी टॉपिक हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो आज हम पहले जबकि ये मेरा पहला वीडियो है, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ओके, आज को आपको तो पता चल गया कि मेरा चैनल का नाम क्या है, गारंटेड सक्सेस, एंड माय नेम इज विकास मंडल एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बंगाल कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, and I have more than 4 years of experience of corporate as well as the teaching experience, and I have qualified NET exam in 2019. So I think from my guidance, if you will go through with my guidance, you will get success in your career, either it is a NET or SO. Okay, so today I will discuss a new chapter, very important chapter for the BBA student, MBA student, for GRF net student, for IBPS SO student. All the student will get questions from this particular chapter. So first I will introduce the chapter called industrial relation. This is the first chapter I am going to teach you. It's called industrial relation. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन. ठीक है, अब भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या चीज. देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन में एचआर में बहुत बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये एक बड़ा बुक ही है एचआर में. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या है. ठीक है, आज को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, इस वीडियोस को एज पर एज शॉर्ट ही रखूंगा. ठीक है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी चलते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या चीज. तो पहले हम लोग को इंडस्ट्रियल रिलेशन समझने के लिए क्या करना है, दो चीज पर नजर बनाना है. फर्स्ट है एम्प्लॉयर एंड सेकंड वन इज एम्प्लॉई. गुड, एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई. सो इन इंडस्ट्रियल रिलेशन वी आर बेसिकली फोकसिंग द relationship between the employer and employee. So industrial relation is nothing but a relationship between the employer and the employees. So if in any examinations it is written, if the relationship between employer and employees is called, what is called industrial relation. यदि इस तरह का कुछ आया एग्जाम में कि what is industrial relation, इसमें क्या होगा कि relationship between employer and employees called industrial relation.
ओके, मैंने कुछ कुछ एग्जाम में देखा है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से। जैसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि एक्टर्स ऑफ आईआर, व्हाट इज द डिफरेंट एक्टर ऑफ आईआर। यहाँ पर बहुत सारे मिसिंग हो जाते हैं, सारे कोई देखेंगे, कुछ कुछ आदमी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर मिस्टेक इन द सेंस ऑफ क्या करते हैं, एक्टर में पहला तो एक्टर क्या है, एम्प्लॉयर है। यहाँ पर पहला एक्टर एम्प्लॉयर है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बता दिया है तुमको कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशन को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो यहाँ फर्स्ट है एम्प्लॉयर, फर्स्ट एक्टर कौन है, एम्प्लॉयर। सेकंड कौन है, एम्प्लॉय। यहां पर एम्प्लॉय को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं ट्रीट करेंगे, यहां पर और एक चीज लिखेंगे इस पे, ट्रेड यूनियन। ठीक है, जितने भी ट्रेड यूनियन के एसोसिएशन मेंबर है उसको भी हम लोग एम्प्लॉय ही बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन हम लोग किसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे, द गवर्नमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्टर ऑफ आईआर, फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉयर, नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉई और द ट्रेड यूनियन, और थर्ड क्या है, गवर्नमेंट। तो आपका यदि सीक्वेंस इस तरह से आ जाए, एम्प्लॉयर देन एम्प्लॉई, और बाय चांस आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रेड यूनियन भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो गलत नहीं है, वो एम्प्लॉयर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, एंड गवर्नमेंट भी हो सकता है। सो एक्टर ऑफ आईआर में ये तीन एक्टर हैं इन आईआर। तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्टर, आईआर का एक्टर क्या क्या है, व्हाट इज द एक्टर ऑफ आईआर, तो क्या क्या है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियन एंड द गवर्नमेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे जाते हैं। टू डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ आईआर है, डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ आईआर। इसको डॉगलस मैकग्रोवर ने इसको डेवलप किया। इसमें दो चीज रखा है, टू डोमिनेंट, वन इज कोऑपरेशन एंड सेकंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट। तो डोमिनेंट एस्पेक्ट यदि पूछा जाए कि एग्जाम में कि व्हाट इज द डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ आईआर, क्या की चीज जो आईआर को डोमिनेट करता है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, फर्स्ट वन इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, कब हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्निशन इन द सेंस ऑफ कॉमन गोल। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कॉमन गोल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, मीन्स द एम्प्लॉयर इज रिकॉग्नाइजिंग द कॉमन गोल ऑफ द एम्प्लॉइज। वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है ना, कोऑपरेशन, हर जगह पे मिनिमाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कोऑपरेशन ज्यादा कुछ करते नहीं है, कुछ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के हर जगह पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल मैटर चलता ही रहता है। ठीक है, तो कोऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोऑपरेशन बता दिए, सीधा सीधी एकदम क्लियर कट डेफिनेशन है कोऑपरेशन का, कि हम लोग को जब एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करता है थ्रू द कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट को जब रिकॉग्नाइज करेगा एम्प्लॉयर, देन हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कोऑपरेशन। मतलब हम लोग क्या करें, एक कॉमन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर बेसिस करके हम लोग क्या करें, कोऑपरेट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का, उसको क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। किसके साथ भाई डिसएग्रीमेंट होगा, तो किसके साथ होगा, फ्रॉम हुम डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशन। किसके साथ होगा, डिसएग्रीमेंट रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं, यहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में बताया जा रहा है, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आईआर में जो होता है, हम लोग यहाँ आईआर बता रहा है, कुछ कुछ आईआर का थ्योरीज हम लोग बाद में आएंगे, द अप्रोचेस टू द आईआर। तो उसमें बताया गया है कुछ कुछ अप्रोचेस में कि कॉन्फ्लिक्ट यदि ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहा, ठीक है, तो क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक हो जाएगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यदि नहीं रहा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक हो जाएगा, डायनामिक नहीं, कंपटीशन नहीं, चैलेंजेस नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगा, प्रोडक्टिविटी कैसे ग्रो करेगा। सो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा मोड़ा रहना जरूरी है, थोड़ा या क्या, थोड़ा चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, अदरवाइज कंपटीशन विल नॉट ऑकर, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं होगा। और एक चीज है, यदि कॉन्फ्लिक्ट बार बार रिपीटेशन होने लगा कॉन्फ्लिक्ट का,
मीन्स इट चैनलाइज्ड। यदि वो चैनलाइज्ड हो जाता है तो हम लोग को क्या करना है, उसको इमीडिएट रिजॉल्व कर देना है कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू वॉलेंट्री और स्टैट्यूटरी मेथड के थ्रू। क्लियर हो गया चीज कि कॉन्फ्लिक्ट में क्या करेंगे हम लोग। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सीधा बात में डिसएग्रीमेंट है भाई। किसके लिए डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। खत्म बात है। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट हर जगह इनविटेबल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, घर में हो, कॉलेज में हो, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, चैलेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये दो तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईआर। ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या कर रहे हैं, एक हार्मोनिक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। किसके साथ, इंप्लॉयर के साथ इंप्लॉइज का, इंप्लॉइज के साथ इंप्लॉइज का, एंड इंप्लॉयर के साथ गवर्नमेंट का, और इंप्लॉइज के साथ गवर्नमेंट का। किसी के साथ भी कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे हम लोग, क्या ऑब्जेक्टिव लेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इंप्लॉइज पॉइंट्स ऑफ व्यू से लेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। तो पहला क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप यदि अच्छा होगा, आईआर यदि अच्छा है, यदि रिलेशनशिप अच्छा है, लॉयलिटी है टुवर्ड द एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वर्कर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे लॉयलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा तो इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। कंपनी का इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, पैसा मिलेगा उसको भी ज्यादा, वर्कर को भी पैसा मिलेगा, और क्या होगा, बोनसेस भी ज्यादा मिलेंगे, है कि नहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यदि आईआर अच्छा रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक हार्मोनिक रिलेशनशिप बनाना है, एंड एज वेल एज क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है टू द वर्कर। नेक्स्ट वन, द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज provide the industrial democracy। सेकेंड वन में क्या बता रहे, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स क्या हो सकता है, ये तो फ्रीडम है बात, ठीक है, फ्रीडम। तो यहां पर फ्रीडम मतलब देश को आजाद करने का बात नहीं है ये, ठीक है। ये बात किसका है, ये बात है इंडस्ट्रियल फ्रीडम का। इंडस्ट्रियल फ्रीडम इन द सेंस क्या है कि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में यदि काम करते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। किस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच, मींस यू कैन गिव द सजेशंस टू द टॉप मैनेजमेंट। जैसे वो लोग कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं कि बोनस कितना बढ़ाना है, प्रमोशन का क्या पॉलिसीज रहेगा, यदि वहां पर आप लोग का भी राय या सजेशंस लिया जाए, देन क्या होगा, वो पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होंगे, उससे रिलेशनशिप भी अच्छा होगा फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन द सेंस ऑफ क्या, सजेशन दे सकते हैं आप लोग फ्री हैं बोलने के लिए, स्पीच, फ्री टू स्पीच है कि आप लोग जाके बात कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। तो सजेशन, फ्री टू स्पीच, यही देता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू कंसल्टेशन, फ्रीडम टू सजेशंस, फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, ये सारा चीज कौन देगा, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी देगा। ये किसके किस पे आएगा, आईआर। यदि आईआर अच्छा रहेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहेगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी इन द सेंस ऑफ क्या करते हैं हम लोग हायर प्रोडक्टिविटी में, यदि आईआर अच्छा हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यदि इंप्लॉइज एंड इंप्लॉयर यदि सही है इन द ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा ना, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली गेट हायर्ड। यदि लॉयलिटी है कि ट्रस्ट है कि नहीं, मेरा जो इंप्लॉयर है, जो मेरा जो मैनेजमेंट है, वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है, सब कुछ में हम लोग का सहायता कर रहा है या मदद कर रहा है या हेल्प कर रहा है, तो क्या होगा ना, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और वंस द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, पैसा भी मिलेगा, सारे एम्प्लॉय खुश रहेंगे। So we are talking about the objective of industrial relation. Okay, so where we talked about the three objectives. First one is economic development of the worker.
we have to going to increase the productivity, the second one is, and third one is industrial democracy. And fourth, the IR objective is it will minimize the industrial dispute. How they will minimize the industrial dispute? Fourth objective is minimize ID. ID means here industrial dispute. ID means the industrial dispute. You can say the ID means the industrial dispute. Okay, minimize the industrial dispute. So how we are going to minimize the industrial dispute? Means minimization of industrial dispute. कैसे मिनिमाइज करेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को? गिविंग द सेटिस्फैक्शन. किसको सेटिस्फैक्शन देंगे भाई? एम्प्लॉय को देंगे. वेरी गुड. वेल, कैसे होगा? मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. तो कैसे डिस्प्यूट को मिनिमाइज करेंगे? थ्रू गिविंग द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल वे से हो, चाहे वो मेंटल वे से हो, चाहे वो इमोशनल वे से हो, किसी वे से हम लोग यदि खुश रख सकते हैं, उसको सेटिस्फाइड रखेंगे तीनों वे से, तो क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. खत्म है बात कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होगा. ठीक है. थर्ड, फोर्थ हो गया ये. नेक्स्ट है फिफ्थ. 5. ज्यादा बड़ा हम नहीं बताएंगे कि 5, 7, 10, 15. ज्यादा से 5 रखना याद, जो मेजर है उससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है. तो मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. नेक्स्ट क्या है? ये क्या करता है? गुड इंडस्ट्रियल क्या करता है? आया लोअर डाउन द एब्सेंटिज्म. एब्सेंटिज्म और क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? टर्न ओवर रेट. ये एब्सेंटिज्म एंड टर्न ओवर किसका है भाई? एम्प्लॉइज का. ठीक है. तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है कि ये लोअर डाउन द टर्नओवर और एब्सेंटिज्म रेट. टर्नओवर तो सबको पता है कि भाई जब एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो भाग जाता है, तो क्या होता है? टर्नओवर आता है. टर्नओवर. ठीक है. और एब्सेंटिज्म में कि जब कोई का शेड्यूल का वर्क रहता है, शेड्यूल वर्क रहता है, लेकिन उस पर वो नहीं पहुंच पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सेंट होना. ठीक है. तो क्या इसमें क्या करते हैं? यदि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन रहा, यदि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या होगा ना? दैट विल लोअर डाउन द absenteeism and the turnover rate. So हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? द ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? 5 ऑब्जेक्टिव, द मेजर ऑब्जेक्टिव आ चुकी. क्या 5 ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट वन क्या था? कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर. सेकंड वन क्या था? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. थर्ड वन क्या था भाई? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. थर्ड वन क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर हो गया. सेकंड वन क्या था? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. एंड थर्ड वन क्या था? थर्ड, ये फोर्थ वन चलता है मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. फिफ्थ वन क्या है? लोअर डाउन द एब्सेंटिज्म. क्लियर हो गया चीज? इज देयर 5 क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग इस पे आते हैं. यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया इंडस्ट्रियल रिलेशन में. एक है लेबर रिलेशन. ठीक है. इंडस्ट्रियल रिलेशन तो पता चल गया कि ये है भाई. यदि पूछ दिया कि व्हाट इज लेबर रिलेशन, तो यहां पर क्या होगा? लेबर रिलेशन में लेबर रिलेशन क्या बता रहा है? लेबर रिलेशन बता रहा है कि ये रिलेशनशिप बिटवीन क्या होगा? लेबर एंड ट्रेड यूनियन. आईआर में क्या बताया? इंडस्ट्रियल रिलेशन में बताया कि ये रिलेशन किसके किसके साथ है? एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर. और ठीक है, और किसके साथ हो सकता है? एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स और द ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट एक्टर, जो बता दिए. लेबर रिलेशन यदि किसी एग्जाम में, कुछ एग्जामिनेशन में, जैसे नेट में भी पूछा गया कि हुम वी कॉल्ड लेबर रिलेशन, क्या व्हाट इज लेबर रिलेशन? मींस लेबर रिलेशन में यदि आप मार दिए कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, आंसर गलत, कट गया, चल गया एक नंबर. क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कि लेबर एंड ट्रेड यूनियन. द रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर एंड ट्रेड यूनियन. ठीक है. आज को मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आज को हम थोड़ा कम ही रखते हैं. आज का सिलेबस यही रखते हैं. नेक्स्ट पार्ट 2 जो मॉड्यूल बनेगा आईआर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहेगा. वहां पर देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं आईआर के, डिफरेंट फैक्टर दैट इज कंसिडरिंग विद द आईआर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ आईआर. वहां से ईच एंड एवरी, आइदर इट इज इन बीबीए, एमबीए, एसओ, नेट एग्जामिनेशन, वहां से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है. कंफर्म लिख के रख लेना है, वहां से क्वेश्चन रहेगा. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको मिस नहीं करना है. कुछ भी हो,
जिस भी तरीके से उसको अटेंड करना है पार्ट 2 वाले को। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।